Bismillahirrahmanirrahim, and I'm progressing today for IELTS listening exam, and this is for 2025. It is for 2025, a new attempt. So it is for 2025 new attempt, and what IELTS listening exam actually is. IELTS listening exam is an exam of 30 minutes in total. So there will be 30 minutes in exam for IELTS listening, and in these 30 minutes, students have to answer 40 questions, and these 40 questions will be divided into four. These 40 questions will be divided into four sections. Four sections. So now, if I talk about the 40 questions and four sections, that means that if I make an equation, that will turn into 10 questions per section, and this will be the normal exam symmetry per section. So I'm repeating the whole thing in Urdu now. And what the thing is that IELTS का listening exam अभी आप class के अंदर तशरीफ रखते हैं. इस IELTS के listening exam में there are for 2025 there will be total 30 minutes allocated and 40 questions will be there in exam. 40 सवाल होंगे. 4 sections में divide किया गया है exam को, और हर एक section में there will be 10 questions per section की allocation है. अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी के, अगर हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की, तो इसको इस तरह से आप समझ लेंगे दैट द सेक्शन 1 इन लिसनिंग एग्जाम इज नोन एज इजी. सेक्शन नंबर 2, section number 2, it is known as tough. Section number 3, it is known as tougher, and section number 4, this will be known as toughest. Toughest. So there are 4 sections in exam. Section 1 will be known as easy. Section 2 will be known as tough, tougher, and the toughest would be the 4th section. So it is what the exam progression and the level of difficulty in exam. That does not mean that recording तेज चलेगी section 4 में या आपका section 3 में recording बड़ी slow होगी. It is not the case actually. The case is something different. What is the case? मैं आगे जाकर उसको explain भी करूँ. So now, if somebody is sitting in manual exam, so after 30 minutes, 10 extra minutes will be given to him as well. If somebody is sitting in the manual exam up till February 28, जो 28 फरवरी तक अपने एग्जाम में बैठ रहे हैं और वो मैनुअल एग्जाम दे रहे हैं, बिकॉज 1 मार्च से द होल आर्ट से टर्निंग इनटू कंप्यूटराइज सिस्टम. अगर तो वो मैनुअल एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 10 एक्स्ट्रा मिनट्स विल बी गिवन. 10 एक्स्ट्रा मिनट्स will be given for answer transfer. Answer transfer from an answer transfer from a question sheet to the answers sheet. Okay. So now 10 extra minutes for answers transfer from a questions sheet to the answers sheet. It is what the examination prescription for the manual exam. अगर कोई manual exam दे रहा है जी फरवरी के महीने में 28 तारीख तक, तो उसके लिए 10 एक्स्ट्रा मिनट्स अवेलेबल होंगे. आफ्टर दैट कंप्यूटराइज सिस्टम में 10 एक्स्ट्रा मिनट्स नहीं. सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप कंप्यूटराइज वालों के साथ ज्यादती करते हैं? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है. कंप्यूटराइज वाले जो बच्चे हैं उनके हर सेक्शन के बाद 2 से 3 मिनट का लूप है. वो नया सेक्शन शुरू होने से पहले 2 से 2.5 मिनट का एक लूप लेते हैं. सो दैट लूप एक्चुअली गिव्स यू 10 एक्स्ट्रा मिनट्स, बट 10 एक्स्ट्रा मिनट्स उसके अंदर शामिल हो जाते हैं. सो एंड पे जाके नहीं होते, बल्कि वो टर्न अराउंड पर आपको 2 मिनट दे देता है और आप बड़े आराम से अपने आंसर को ट्रांसफर साथ साथ भी कर रहे होते हैं. लेकिन अगर कुछ सीधा वगैरह करना और स्पेलिंग भी चेक करने हो तो हम उसमें वो कर भी सकते हैं. इंशाल्लाह जब मैं सवाल करवाना शुरू करूंगा तो मैं उनको पैरेलल साइड बाय साइड आपको समझाता जाऊं. सो नाउ इन IELTS listening exam there are 2 sheets given. There are 2 sheets involved. 2 sheets involved है. There are 2 sheets involved.
sheet number one, sheet one is known as questions sheet. क्वेश्चन शीट, इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, इसके अंदर सब क्वेश्चंस लिखे होंगे. एंड शीट नंबर टू इज नोन एज आंसर शीट. इसके ऊपर आपने अपने आंसर्स ट्रांसफर करने हैं. अब 28 फरवरी के बाद आपके आंसर ट्रांसफर करने की शीट आपके क्वेश्चन के साथ अंदर एडजस्ट हो जाएगी. आपके क्वेश्चंस के दरमियान में जहां ब्लैंक बना होता था पहले शीट वन पे, अब वहां पे बॉक्स बना होगा आंसर लिखने के लिए. लेकिन अगेन वो कंप्यूटराइज एग्जाम के लिए बाद में बात करूंगा उस पर. सो आज तक के लिए जो मैनुअल एग्जाम दे रहे हैं, देयर आर टू शीट्स इन्वॉल्व. वन शीट इज शीट वन, दैट इज नोन एज क्वेश्चन शीट, एंड सेकंड शीट इज नोन एज आंसर शीट. याद रखिए, क्वेश्चन शीट के ऊपर नथिंग इज मार्केबल. नथिंग इज मार्केबल. क्वेश्चन शीट्स के ऊपर दी भी कोई भी चीज मार्केबल नहीं है. आप उसको पूरा भर दें अपने आंसर से, दोज ऑल आर नॉट मार्केबल. वो मार्केबल नहीं है. आंसर शीट के ऊपर एवरीथिंग, आंसर शीट के ऊपर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज मार्केबल. ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसको जरा पल्ले से बांधिएगा, तो ध्यान कीजिएगा इस बात पे. आपकी क्वेश्चन शीट के ऊपर लिखी हुई हर चीज वैल्यूलेस. आपकी आंसर शीट पे लिखी हुई हर एक स्पेसिफिक चीज वैल्यूएबल. So sheet one that is known as the question sheet, कुछ भी लिखा हुआ इसके ऊपर it is worthless. जबकि आपके आंसर शीट के ऊपर लिखी हुई हर एक चीज is the valuable. Okay, क्वेश्चन शीट के ऊपर लिखा हुआ सारा स्पेलिंग गलत है. अगर मैनुअल्स के एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन शीट के ऊपर एक स्पेलिंग भी गलत होगा तो आपको आंसर, आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं होंगे. So there are total 40 questions in exam. I have not discussed anything regarding the marks. वापस चलता हूँ अपनी initial discussion पे. 30 marks, 10 extra minutes for the answer of the answer transfers. So there are total 40 marks in the exam. 40 marks. Total 40 marks in the exam. And in these 40 marks, अगर अब मैं equation बनाना चाहूँ, तो that means equation will be one question will be of 1 mark. So one question, 1 mark would be the equation the students have to follow in their exam. There is complete credit classes. There are two type of classes जो हो सकते हैं किसी एग्जाम में. एक को कहते हैं पार्शियल क्रेडिट, एक को कहते हैं कंप्लीट क्रेडिट. पार्शियल क्रेडिट से मुराद है कि आधा ठीक है, आधा नंबर मिल जाएगा. यहाँ पे कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं. कंप्लीट क्रेडिट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन अगर फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड्स का आंसर था, एक का स्पेलिंग गलत है, वो आपको आधा नंबर नहीं देने वाला. पूरा आंसर ठीक होगा तो आपको नंबर देने वाला, कोई आधा नंबर नहीं देने वाला. अगर आपका आंसर बनता है पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद के स्पेलिंग गलत है, 0 नंबर मिलेगा. ये नहीं कि पाकिस्तान ठीक है आधा नंबर मिल जाए. याद रखिएगा. सो IELTS लिसनिंग एग्जाम इज अ कंप्लीट क्रेडिट एग्जाम. पूरा नंबर या तो मिलता है, पूरा नंबर नहीं मिलता है. तो बात ज़हन में रखिएगा. सो नाउ आगे चलिए. सो देयर आर 2 शीट्स इन एग्जाम. शीट नंबर 1 इज नोन एज क्वेश्चन शीट. शीट नंबर 2 इज नोन एज आंसर शीट्स. आगे चलिए, मूव अहेड. Our recording is played. Recording is played. How the test work, how it works. ये काम कैसे करता है, how it works. Number 1, recording is played. A recording is played. Recording is played. एक रिकॉर्डिंग चला दी जाती है जनाब. इस रिकॉर्डिंग के अंदर आपके पास एग्जैक्टली वही सारी चीजें होती हैं जो आपकी आंखों के सामने पड़े हुए क्वेश्चंस के अंदर भी है. जहां पे आपका आंसर है और क्वेश्चन शीट पे वहां पे ब्लैंक बना हुआ है, आपकी रिकॉर्डिंग में उस जगह पे उसका आंसर होगा जो हमने वहां से सुन के लिखना होगा. सो रिकॉर्डिंग इज प्लेड एंड दैट इज रिपीटेड वंस ओनली. रिकॉर्डिंग इज नॉट रिपीटेड. रिकॉर्डिंग इज नॉट रिपीटेड. रिकॉर्डिंग को रिपीट नहीं किया जाता है. रिकॉर्डिंग इज प्लेड एक दफा. रिकॉर्डिंग इज नॉट रिपीटेड. रिकॉर्डिंग बाद में रिपीट नहीं होती है. Number 3, the third thing is that recording is played, recording is not repeated. And जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, there are 2 types of recordings for given questions. आपके जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनकी 2 तरह की रिकॉर्डिंग्स होंगी. एक में सिंगल वॉइस होगी, एक में सिंगल वॉइस होगी और
Second recording में there will be a double voice. So there are two types of voices in the question. One is single voice, one is double voice. If voice is single, these questions in which single voice is there, ये सवाल जिनमें single voice होता है, these questions are known as monologue. Monologue questions. इनको क्या कहते हैं? Monologue questions. और जिनमें double voice होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं dialogue. Dialogue questions. Clear or not? So there are two type of questions in your exam. अब मैं reverse order में चला रहा हूँ इसको. Reverse order में क्या कह रहा हूँ? जरा ध्यान से सुनिएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि in IELTS exam there are two type of question. One type of question is known as dialogue question. The second type of question is known as monologue questions. What is the difference in that? In monologue questions, one single voice is played. Question भी उसी में, जवाब भी उसी में. In dialogue, there are two voices. One voice normally contains the question. The second voice contains the answer. Answer हमेशा second voice को याद रखिए. Okay. So how it works. Recording is played once only. There are two sheets I have told you already. There are two voices. One is a double voice, one is single voice. Single voice is known as monologue question voice, and the double voice is known as the dialogue question voice. So it is how the test works and how you will see the test in your exam room. So there are number of questions. There are number of questions. Number of questions. There are number of questions. बहुत से सवाल होते हैं. There are number of questions in exam. Number of questions. The first question is known as, the first question type is known as form filling. पहला सवाल कहलाता है form filling. Form filling. पहली तरह के सवाल को कहते हैं form filling. Second type of question. Now, I'm going to make a quick recap. IELTS listening exam for 2025, 30 minutes, 10 extra minutes for answer transfer. If you are a manual exam attempting student, 40 questions, and there will be total 40 marks as well. The test will be divided into 4 sections. So there will be 10 questions in every specific section, and one question will contain one number. Section 1 will be known as easy, tough, tougher, and the toughest is section number 4. There are 2 sheets are involved. Sheet 1, question sheet, and sheet 2 is known as answer sheet. Anything on question sheet is valueless. Everything on the answer sheet is valuable. How it works? A recording is played, and then the recording is not repeated again. There are 2 types of voices that you can listen. One is single, one is double. If some question contain the single voice, that is known as a monologue question, while if some question is in the double voice, that is known as a dialogue question. Okay. So it is a quick recap what I have written here. So I'm going to work on the further information now. So now the first type of questions that I've told you is known as the form filling questions. Okay. So now I'm proceeding. The second type of questions are known as, second type of question is known as table completion. The third type of questions are known as schedule completion. The fourth type of question are known as fill in the blanks. Fill in blanks. And these fill in the blanks can be of different types. Number 1, the first type is known as simple fillers, bacho. Simple fillers. Simple fillers are known as that what we are doing since our kids, when we were in the kids, since our childhood, we are doing that when we were kids. एक specific sentence दिया होता है, उसके दरम्यान में कहीं कट लगा होता, and that is known as a simple filler, है ना जी. Second one is known as sentence completion. Sentence completion filler. Normally इनके end पे completion. Second इनके end पे जाके sentence को हमने attach करना, end पे जाके it is blank at the end and हमने उसको वहां पे जाके complete करना. That is known as sentence completion questions. ये है fill in the blanks का दूसरा type. Third one is known as summary fillers. Summary fillers. Summary filler में हमें एक paragraph दिया होता है for an example, and then that specific paragraph contains the cuts in between.
एंड दोज कट्स जो कि उसके अंदर लगे होते हैं, हमने ओवर द एग्जाम हमने उनको फिल करने, रिकॉर्डिंग सुनने के दरम्यान हम उन कट्स को फिल करते चले जाते हैं, और हमें जो है ना वो हम आगे उसको चलते जाते हैं और फिर हम उसको करते जाते हैं. Okay, so move ahead. So now, type of question number 5. Okay, so now some defeaters, there will be cuts in between the paragraph. And while recording, we have to listen the answer and we have to write the answers in between the lines. Okay, it is summary filler. Number 5, the fifth type of question is known as questions and answers. Question and answers. Number 5, the fifth type of question is known as the selection question. Selection question. The sixth type of question and the seventh type of question are one of the top matching questions. Number 8, there are multiple choice questions, and they are multiple choice questions and they are one with a single answer. पहले वाला होगा with single answer, and second type of MCQs are with double answers. Double answers. Okay, so MCQs की दो types होंगे, single answer MCQs, and number 2 we can mark it like it is the double answer MCQs. Is it done, bachcho? So this is number 8. So now after MCQs we enter into the next type, that is known as maps. Maps are among the very popular questions nowadays as well. So these are a bit different, a few different type of the questions. And number 10, it can even be the labeling, label, labeling the diagram, and this is the 10th type of question जो हम जब अपने एग्जाम में करेंगे. अब मैंने बताया कि there are about 14 type of questions. अब मैंने क्या किया, मैंने fill in the blanks को ABC करके लिख दिया, 3 वहां पे लिख दिया, MCQs को मैंने 2 इकट्ठे लिख दिए. अगर मैं इनको अलग करता हूं, this will turn into almost 14 type of 13 to 14 different type of questions जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. So this is what a brief introduction about the listening. There are certain things which can make listening easy for us, and those certain types which can make listening easy for us, मैं उसको नाम देता हूँ tips for listening, tips for smart listening score, for smart listening, for smart listening. Smart listening. अब इसको बहुत तवज्जो से सुनिए. If you would be able to just handle it in an effective way, I'm telling you that inshallah band कहीं नहीं जाता. अब इस क्लास में बैठे हुए हैं, this class contains an average band of 8 illa mashallah barakallah la quwwata illa billah. So now the average band is at 8, means if somebody is having 7, the second buddy will be having 9. And I believe Sania's brother, he was my online student, his band is in listening, his band is at 9 or 8.5. 8.5 or 9 is band. Okay, so Sania ke bhai hain. So now tips for the smart listening attack. Number 1, remember to mark the keywords. Remember to mark the keywords. What are the keywords, by the way? Keywords वो words होते हैं जिनको हम ये समझते हैं कि examiner cannot skip in the recording. For an example, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा जरा. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Pakistan came into being in, and then there is a blank that we need to answer. इस पूरी लाइन के अंदर देखिए, see in this whole line, what do you think is the word that cannot miss in recording? Came into being can be replaced by formed. Okay, it can be replaced with Pakistan was formed. इस पूरी लाइन में कौन सा वर्ड है जो स्किप नहीं हो सकता रिकॉर्डिंग के दौरान? That word is Pakistan. अगर हम अपने क्वेश्चंस के वो वर्ड मार्क कर लें जिनको एग्जामिनर स्किप नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग पे, और अगर हम उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना लेफ्ट इंडेक्स फिंगर
रखा हुआ है अपने कीवर्ड के ऊपर और पेंसिल दूसरे कीवर्ड के ऊपर। इफ आई कुड ग्रिप द कीवर्ड्स ऑफ वन क्वेश्चन, उनके बगैर आंसर नहीं आने वाला, यकीन कीजिए। उन वर्ड जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, एक दो वर्ड्स पहले एक दो वर्ड बाद आपके आंसर्स आपका वेट कर रहे होंगे। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू मार्क दी कीवर्ड्स। जितने स्ट्रांग होंगे हम कीवर्ड्स मार्किंग पे, उतना ही ज्यादा हम लोग स्ट्रांग होंगे अपने आंसर्स के क्वेश्चंस को करेक्ट करने में। इसके बाद याद रखिएगा, सो कीवर्ड मार्किंग वुड बी a key to success for you all students जो भी मेरे साथ बैठे। नंबर 2, आपने 12 मंथ्स के नाम सुना, 12 months of a year. For example, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Remember, the person who is knowing to, or he is known to the spellings of 12 months of the months, believe me, 12 months spelling के लिए known है। If he is known to the spelling of 12 months of a year, एग्जाम में 1 से 2 सवाल, एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चंस गिफ्ट ले लें मुझसे। अब लोग कहेंगे ये तो मैं बचपन से याद है। आपको अगर जनवरी के स्पेलिंग लिखना पड़ जाए ना, फरवरी के स्पेलिंग लिखना पड़ जाए, तो आप एक बार लिखते हुए रुक जाते हैं, यानी पता नहीं क्या हुआ, स्पेलिंग है क्या। बिकॉज हमने तो इनको उर्दू में याद किया है ना, हम लिखते हैं FEVER फरवरी, है ना। आगे चल, नंबर 3, 7 days a week, 7 days of week. If somebody is strong on the spelling of 7 days a week, believe me, 1 to 2 questions मुझसे ले लें एग्जाम में, 1 to 2 questions, 1 to 2 क्वेश्चन ले लें मुझसे एग्जाम। मैं टिप्स को हमेशा एंड पे रखता हूँ अपने लेक्चर के, ताकि ना जो बाहर के लोग आते हैं ना, वो शुरू के लेक्चर का ऐसा देख के निकल जाता और टिप्स उनको नजर नहीं आती, वगैरह हर तरफ फैली होती है ना जी। तो 7 days a week, believe me, will give you 1 to 2 days in the 1 to 2 questions in exam, and 2 marks are gifted from my side, believe me. But if somebody says that हमें तो यार बचपन से आते हैं, आपको मैं कहूँ ना थर्सडे के स्पेलिंग लिखें, तो आप 4 दफा सोचते हैं थर्स में R पहले आता है या U पहले आता है, because we have taken things for granted. Examiner को भी पता है what is the weak note of the students. He tries to attempt on the weak note. Believe me, majority of the question contain the answer as a Thursday, as a Wednesday. Okay, because the pronunciation is different, the spelling are different. A few words are silent there into. So now 7 days a week, and this will give you 1 to 2 questions, I'm telling. Tips का ध्यान रखिए। Number 3, अगर name answer हो, अगर name answer होगा बच्चों, name answer, believe me, examiner spells out the name। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। नेम में क्वेश्चन आए ना, तो नवाबों की तरह टेक लगा के बैठ जाएगा, वो स्पेलिंग बोलेगा, हाय 2 क्वेश्चन आगे चला जाए वापस आएगा, स्पेलिंग बोलेगा तो आगे जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ अ प्लेस और नेम ऑफ अ पर्सन। एग्जामिनर स्पेल आउट करेगा, और एग्जाम में 1 से 2 सवाल नहीं स्किप होते इंशाल्लाह। आगे चलिए, if the answer will be in credit card numbers, if it is in the phone numbers, examiner last 4 digits को examiner repeat करता है, examiner repeats last 4 digits। इसका मतलब क्या हुआ? That means that you should be very conscious and vigilant about the first 8 words। Last 4 words will be definitely repeated by the examiner, so you will get them again, but there should be no mistake in first 8 digits what you are writing। इन पर आपने बड़ा conscious होना है, इन पर अगर गलती होगी ना, तो examiner repeat नहीं करने जा रहा। Okay, and normally this type of question give you 1 to 2 question in exam as well। 1 to 2 question come from this side, उसको हम कहते हैं phone numbers, and the phone numbers and the credit card numbers। 1 to 2 question are gifted from these sides। Remember, examiner loves a few words, examiner loves a few words in academic listening, and that is same for the both of them academic and the GT students। It is same exam, so this will be applied for both on the side, GT पे भी apply हो जाएगा और academics पे भी। examiner को कुछ words बड़े पसंद है। For an example, उसको म्यूजियम बड़ा पसंद है, मेरी बात में आ रही? उसको एक वर्ड बड़ा पसंद है म्यूजियम, मेरी बात में आती? उसको एक वर्ड बड़ा पसंद है आर्किटेक्चर, उसको बड़ा पसंद है ये वर्ड आर्किटेक्चर। उसको बड़ा पसंद है प्रेजेंटेशंस, उसको बड़ा पसंद है वर्ड इंटरव्यू और इंटरव्यूज। मेरी बात समझ, बड़ा पसंद है उसको चार्ट्स एंड ग्राफ्स।
बिलीव मी, हर एग्जाम के अंदर 3 से 4 सवाल इस वोकैबुलरी के अंदर से आए होते हैं। इसमें एक जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसकी लिस्ट को लेके जाऊंगा 15 तक। यू विल बिलीव मी दैट 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर इन 15 वोकैबुलरी वर्ड्स के अंदर से होते हैं। So if I count them down, तो एग्जाम में 8 से 10 सवाल का थ्रेशोल्ड आपके पास है। If you are a smart attempt maker person, if you are a smart person, 8 से 10 सवाल का थ्रेशोल्ड। People have to fight for 40, you have to fight for 30, believe me, if you are working on these tips। आगे चलें। all questions all questions will be in order, will be in order। सारे के सारे सवाल ऑर्डर में, believe me, सारे सवाल ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देगा तो 2 पे जाएगा, 2 का आंसर देगा तो तीसरे पे जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। आई एम टेलिंग यू, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जब तक आंसर नहीं होता आगे नहीं जाता एग्जामिनर। ये याद रखिएगा। ऑल क्वेश्चन विल बी इन ऑर्डर एंड इट रन्स, एग्जामिनर चलता है इन सेंटेंस ऑर्डर, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आपके इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आपका एग्जामिनर कॉलम्स में काम कर रहा है, क्वेश्चन पे कॉलम्स बने हुए हैं, दरमियान में लाइन लगी हुई है, तो वो एक पहले कॉलम को खत्म करे फिर दूसरे को, ऐसा नहीं होता। वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के अंदर चला जाता है, लेकिन जब तक एक साइड से लेफ्ट टू राइट पूरा सेंटेंस पूरा नहीं होता वो दूसरी लाइन पे नहीं आता। याद रखिए, एग्जामिनर ऑलवेज रन ऑन द राइट साइड इन द सेंटेंस ऑर्डर। तो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलेगा वो, कॉलम के कॉलम वाइज ना, सेंटेंस वाइज पूरा करेगा, खाए 3 कॉलम ही क्यों ना हो। और फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ कॉलम के अंदर चला जाएगा, लेकिन एक पूरी लाइन खत्म करके आए। एग्जामिनर नेवर लीव्स, नेवर लीव्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1% सिलेक्शन क्वेश्चन में कभी भी कर जाता, नेवर लीव्स अ सिंगल ब्लैक वर्ड, अ सिंगल ब्लैक वर्ड ऑन द वाइट शीट। याद रखना मेरी बात, है पल्ले से बांध लो। लड़कियां तो दुपट्टे से बांध लो, लड़कियां तो पता नहीं कहाँ बांधोगे, बाल बांध दो, नहीं पता नहीं क्या करोगे तुम लोग, बेल्ट बांध लो, कुछ कर लो। सुनो आशिर साहब, कुछ तो करना पड़ेगा ना। सुनो, एग्जामिनर नेवर लीव्स इवन अ सिंगल ब्लैक वर्ड ऑन दिस वाइट शीट। मत घबराइएगा, एग्जाम में मैं अपने कीवर्ड पे खड़ा हूं, अल्लाह आ ही नहीं रहा, आएगा। देर हो सकती है, अल्लाह के यहाँ देर है, देर नहीं आएगा इंशाल्लाह। एग्जामिनर कोई एक सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ता, याद रखना, ठीक है ना। जैसे नेवर लीव इवन अ सिंगल ब्लैक वर्ड ऑन दैट वाइट शीट, जो आपके एग्जाम में आपका। मेरी बात समझ में आ रही है जी। उसके बाद याद रखना, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग याद रखना, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग नेवर केयर अबाउट स्पेलिंग्स। जब अपने आंसर लिख रहे हो ना क्वेश्चन शीट पर, इवन कंप्यूटराइज भी जब डब्बे के अंदर लिख रहे हैं ना, पूरे पूरे वर्ड मत लिखें। रिकॉर्डिंग चल रही है और आप आर्किटेक्चर पे लगे हो, आर्किटेक्चर यार ARCHI था या ARCHE था, यार सर ने तो मुझे बताया था, याद नहीं रहा यार, किसी से पूछ लूं। और जैसे ही आप उनकी तरफ जाते हैं ना स्पेलिंग की तरफ, रिकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन आगे निकल जाती है। भाई डब्बे के अंदर कंप्यूटराइज्ड भी और मैनुअल वाले क्वेश्चन शीट के ऊपर भाई हिंट लिख लें अपने लिए। याद रखें, इंसान का दिमाग 30 मिनट तक कुछ नहीं भूलता। आप एक भी हिंट ना लिखें, आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे, मैं क्लास में करके दिखाऊंगा। इवन देन अगर आपने हिंटिंग करनी है ना, तो बंदा बन की हिंटिंग करो। बंदा बन की हिंटिंग करने से क्या मुराद है? बंदा बन की हिंटिंग करने से मुराद है ये छोटा सा हिंट लिखना, आर्किटेक्चर ARCH काफी है इंशाल्लाह। फिर हम जब उसको आंसर शीट पर ट्रांसफर करेंगे फिर देख लेंगे इसकी स्पेलिंग क्या है। लेकिन अगर आप अंधाधुंध स्पेलिंग्स पर तवज्जो देंगे और हर एक चीज को ठीक करना चाहेंगे कि नहीं, जब तक ये स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे मैं तो यहाँ से आगे नहीं जा रहा, तो बस मैं तो यहाँ से आगे नहीं जा रहा, तो बस फिर एक आधा क्वेश्चन करेंगे 10 में से एक शीट के ऊपर में हम करेंगे। सो डू नॉट बिकम कॉन्शियस अबाउट द स्पेलिंग्स। टफ वर्ड, टफ वर्ड, यकीन कर लो यार, टफ वर्ड। अगर आपको कोई ऐसा आंसर लगता है ना जिंदगी में पहली बार सुना, मेरा एक्सपीरियंस है, जमाने गुजर, छोटा सा बच्चा था हाशिर की तरह, अब तो मैं बूढ़ा हूं ना, छोटा सा बच्चा था मैं, इस तरह ये सानिया है ना, तो अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। इन इतने सालों में मैंने एक बात सीखी है, एग्जामिनर जो टफ वर्ड यूज करता है, आपने कॉमन लाइफ में ना सुना हो, बिलीव मी, उसी सफे पे ऊपर या नीचे उस वर्ड को दे देता है, एंड यू गेट द टफ वर्ड ऑन द सेम पेज, ऑन द नेक्स्ट पेज, बिलीव मी, यू गेट, आई हैव माय वर्ड्स विद यू। आपको वो टफ वर्ड उसी पेज पे, परेशान मत होइएगा। अगर आप सुनते हैं वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल्स आर फाउंड इन दिस एरिया, आपको नहीं आता ना कोरल, उर्दू में लिखे कोरल, के सॉरी, उर्दू मेरी कमजोर है, काफ वाव आर एल कोरल, ओके, तो उसको उर्दू में लिख लें, फर्क नहीं पड़ता, उसी पेज के ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं देखिएगा, कोरल का वर्ड उसने दोबारा दिया होगा, यू विल गेट योर स्पेलिंग्स। डू नॉट बॉदर yourself for tough word spelling during recording. If you will do so, believe me, exam will bother you.
If you will bother the tough word, exam will bother you. Just put a shit upon that tough word at that time during recording. क्या मतलब दफा करें उसको. You will get inshallah the tough word on the same page. मेरी बात समझ में आ रही. छोड़ दें उसको. Believe me, you can do it. इस बात पे अगर चलेंगे ना, आई कैन डू इट इंशाल्लाह, अल्लाह आपके साथ है. 40 नंबर लेने से कोई नहीं रोकता. मगर इस क्लास का एवरेज बैंड है, एवरेज बैंड है 8. क्या मतलब एवरेज बैंड 8? एक का 7 आ गया बेचारे का, तो दूसरा फिर 9 लेके दिखाएगा इंशाल्लाह. मेरी बात समझ में आती. और इन ऑनलाइन के बच्चों ने तबाही फेरी हुई. ओवरऑल 8 बैंड. रीडिंग लिसनिंग में तो ये आते ही नहीं 9 से नीचे. व्हाट आई एम टेलिंग, स्टे कॉन्फिडेंट. ये सारी टिप्स आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि थिंग्स आर इन हैंड. पहले टेस्ट में लगता है हम चल रहे हैं गीले फर्श पर, पाँव स्लिप होता है. दूसरे टेस्ट में जाके आपको ऐसा लगता है नहीं मैं थोड़ा स्टेबल हूँ. तीसरे टेस्ट में जाके यू यू फील दैट आप 100%. अब मैंने चेंज कर दिया था. मैं पहले सिमिलैरिटी क्रिएट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ अलग काट. मैं 100-200 क्वेश्चंस के बाद जाता हूँ टेस्ट पर. उन्हीं टेस्टों से काटे होते हैं मैंने. तो होता क्या, उन टेस्टों में रिपीट भी हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं. एक आइट्स की बुक आपको 160 सवाल देती है. मैं वादा करता हूँ मैं 2600 सवाल कराऊंगा इस क्लास में. 2600 आप करने वाले थे. 2600 क्वेश्चन वर्सेज 160 क्वेश्चन इन वन कैम्ब्रिज बुक. आई एम प्रॉमिसिंग यू. वन थिंग यू हैव टू एश्योर, क्लास नहीं छोड़. सर इरफान की तरह नहीं करना. विजिटिंग स्टूडेंट नहीं बनना. आपने फजले खाले की तरह विजिटिंग स्टूडेंट नहीं बनना. आपने रजब की तरह विजिटिंग स्टूडेंट नहीं बनना, और डॉक्टर सानिया की तरह विजिटिंग स्टूडेंट नहीं बनना. आपने रेगुलर स्टूडेंट रहना है, ताकि आप ये सारे सवाल जो है ना उनको अच्छी तरीके से करें. ओके, so it is all about the basic information you must know and you need to know when you talk about the listening exam overall. Okay, if there is any question, I would be very happy to answer you people regarding that specific question. And अगर कोई सवाल है तो मैं आंसर करूंगा. And what then I need is that आपको कल की क्लास में चाहिए आपका बुकलेट प्रिंट करा के रखना. नंबर 2 पेंसिल, नंबर 3 इरेजर, नंबर 4 शार्पनर. 4 चीजें चाहिए, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर तो बुकलेट. पांचवा कौन? आप खुद. ये 5 चीजें क्लास में लें इंशाल्लाह. मेरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की तरफ से मंजूर हुआ, फजल अल्लाह का हुआ, तो बैंड 9 होगा इंशाल्लाह. दैट इज माय कमिटमेंट. आपसे करना. अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए. अगर कोई सवाल है तो मैं उसको आंसर करूंगा. उसके बाद अपना ओरिएंटेशन सेशन आज के लिए खत्म इंशाल्लाह. आपकी नई प्रोग्राम मैनेजर हैज बीन हायर्ड. हायर्ड तो नहीं, हैज बीन अपॉइंटेड का वर्ड भी गलत होगा. मार्फिन है वो हमारी. गुजारिश ये है कि वो न्यू प्रोग्राम मैनेजर हैज ज्वाइंड योर ग्रुप टुडे. उन्होंने आज आपका ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया है. मैं उनको भी अपनी क्लास के फौरन बाद इंट्रोड्यूस करा दूंगा इंशाल्लाह.